Now screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Uh, let's start with the from the last yesterday topic, that is KS test and Shapiro-Wilks test. And this test is used for the normality of the data. To check the normality plot, we use the KS test and Shapiro-Wilks test. So try to demonstrate this. Yesterday we already demonstrated this, but from the continuation from the yesterday talk, we try to give you again demonstration how to perform the normality plot with test. Now go to the main this file. So what should we do? Go to analyze, go to descriptive, and go to explore. Go to analyze, go to descriptive, and go to explore. Click on this. Or after this, I am interested in health score. Suppose I am interested in health score and I want to check that our health score follow the normality or not. So what we do, just click on plots, just unclick the stem and leaf and click on normality plot with test. Normality plot with test पर हम click करेंगे, then again continue, then click OK. Now come to the output. आउटपुट हम देखें, आउटपुट में हम देख पा रहे हैं कि टेस्ट ऑफ द नॉर्मेलिटी इन दिस सेक्शन, टेस्ट ऑफ द नॉर्मेलिटी, health score, this sig value, KS test and Shapiro-Wilks test, both tests are used for the to check the normality of the data. Health score sig value is the p value. This value is 0.200 and this sig value is 0.139. So one test is sufficient to perform the normality of the data. So p value is 0.200, which is greater than 0.05. So in this case, we can say that our data follow the normality condition and we are able to perform the parametric test. अब p वैल्यू आपकी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, किससे? अल्फा से. अल्फा से कंपेयर करेंगे जो बाय डिफॉल्ट 5% रखते हैं, कुछ लोग 10 रख लेते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट 5 होता है. तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम इसे परफॉर्म करेंगे और देखते हैं कि p वैल्यू अगर ग्रेटर आती है 0.05 से, तो हम कहेंगे यस, आवर डेटा फॉलो द नॉर्मेलिटी assumption. Now from the next topic we can use the descriptive and go to the inferential statistics. So data analysis, basically data analysis deals with the two types. There are two types of statistics are there: descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics contain mean, median, mode, range, SD, etc., and graphical, histogram, pie chart, scatter diagram, box plot. All these things are belongs to the descriptive statistics. Talk the summary of the data. And inferential statistics contain two-part: estimation and hypothesis testing. So there are two parts, and we try to complete the different testings and diagrams in the next upcoming lectures. So descriptive statistics, how to get the descriptive statistics of the data in our research. So the command is go to analyze, go to descriptive, and go to descriptive. Go to analyze, go to descriptive, and again go to descriptive, and contain the variable in which you are interested and just click OK. So come to the SPSS file. So SPSS file is visible, everyone? Yes, SPSS file is visible. Yes, yes. Okay, thank you. Go to analyze, go to descriptive, and again go to descriptive. Write the command, go to analyze, go to descriptive, and again go to descriptive. Now you are interested in health score, you are interested in personality score, you are interested in average score. Just click on options. In options you will get the descriptive. Just click on the descriptive in which you are interested. Suppose you are interested in SD, minimum value, maximum value. You are interested in sum, you are interested in skewness kurtosis, then click on continue.
तो आप जिस पर जो भी चीजें आपको चाहिए, जो भी आपको वैल्यूज चाहिए, वो आप क्लिक करिए, मीन, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन. So it is depend on your objective in which you are interested. Just click on it and click on continue, then click on OK. अब देखिए, हेल्थ स्कोर टोटल 25 वैल्यूज है हमारे पास. मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन, सम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ऑल वैल्यूज आर गिवन इन ऑल द 3 वेरिएबल्स. आपको सारे वेरिएबल्स का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, देन यू कैन क्लिक ऑन ऑल दी, जस्ट गो टू एनालाइज, go to descriptive, again go to descriptive and select all the variables in the variable window and click on options and click in which you are interested and okay, click on continue. So आप इस तरह से सारे descriptives यहाँ पर easily find कर सकते हैं, obtain कर सकते हैं. So this is the brief idea about the descriptive statistics. Now suppose you are interested in the descriptives according to the gender. जैसे आपने ऑब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि मुझे जो हमारा रिजल्ट चाहिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल. सो व्हाट वी डू, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज given here according to the male and female. So in the previous output, ये जो आउटपुट आया ये ओवरऑल आया, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, ये 25 का आउटपुट आया, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं कि मेल का डिस्क्रिप्टिव अलग आ जाए और फीमेल का डिस्क्रिप्टिव अलग आ जाए. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड वी डू, जस्ट गो टू सीट हेयर, just go to data view, go to data, split file, organize output by group and grouping variables list to the group based on list. grouping variables कर देंगे और click on OK. again इसको हम देखेंगे data view, go to data, go to split file. Why we are doing this, because I am interested that I am interested in output according to the gender. gender के according हमें output चाहिए. तो gender कहाँ है हमारा, gender of a person. So this one, organize output by groups, click कर दीजिए, then organize output by groups कर दिया और क्लिक कर दिया हमने, ऑर्गेनाइज आउटपुट बाय ग्रुप्स एंड ग्रुप बेस्ड ऑन जेंडर ऑफ अ पर्सन. कौन कौन जेंडर में हमारे पास मेल और फीमेल है. क्लिक ऑन ओके. अब नाउ कम टू द आउटपुट विंडो, सी इट हियर. आउटपुट विंडो में देखिए, स्प्लिट फाइल सेपरेट बाय जेंडर, स्प्लिट फाइल सेपरेट बाय जेंडर, यानी जो फाइल हो गई वो सेपरेट हो गई आपकी जेंडर वाइज. अब हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव एंड अगेन गो टू डिस्क्रिप्टिव. अब डिस्क्रिप्टिव हमने किया और हमें ये जो वेरिएबल्स थे इनको अब जेंडर वाइज हमें डिस्क्रिप्टिव चाहिए, जस्ट क्लिक ऑन ओके. अब देखिए, नाउ सी देयर दिस वन, जेंडर ऑफ अ पर्सन, दिस डिस्क्रिप्टिव इज 14, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्टिव में आपके जो हमारा हाइपोथेटिकल डेटा है उसमें 14 मेल हैं. देखिए, जेंडर ऑफ अ पर्सन मेल, ये 14 मेल का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया और ये फीमेल का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया. मेल एंड फीमेल का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारा गिवन है अकॉर्डिंग टू दी जेंडर. जेंडर का मेल एंड फीमेल, मेल का 14 है एंड फीमेल का 11. अब इनके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सेपरेटली हमें ऑब्टेन हो गए. अब आपको अगर चाहिए, सपोज करिए यू आर इंटरेस्टेड इन, suppose you are interested in descriptive statistics according to religion or according to monthly income, वो भी हम obtain कर सकते हैं. कैसे, again we try to organize output according to the monthly income, यानी जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग हमें descriptive statistics चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा स्प्लिट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्प्लिट फाइल किया, गो टू डेटा, गो टू स्प्लिट फाइल, reset it. Now we are interested in organize output by group. organize output by group पे क्लिक करेंगे. ग्रुप किस पर बेस्ड होगा, सपोज ग्रुप हमें चाहिए रिलीजन ऑफ अ पर्सन नहीं, मंथली इनकम के अकॉर्डिंग चाहिए. मंथली इनकम के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट चाहिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ओके कर दिया. नाउ कम टू द आउटपुट फाइल, सी स्प्लिट फाइल सेपरेट बाय एमआई, मंथली इनकम. तो अब जो फाइल हो गई मंथली इनकम के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गई. अब हम इसे कैसे डील करेंगे, गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव, अगेन गो टू डिस्क्रिप्टिव
and these variables in which we are interested, click on OK. अब देखिए हमारा जो मंथली इनकम में कितने ग्रुप थे हमारे. नाउ कम टू द वेरिएबल व्यू. सी दिस इज मंथली इनकम. यहां पर मंथली इनकम में ग्रुप कितने थे? 0 बिलो 2000 जिनकी आमदनी है, 1 2000 टू 4000 जिनकी इनकम है, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, यानी टोटल 4 ग्रुप बने. 0 1 2 3 हमने कोट किए, 4 ग्रुप हैं. तो 4 ग्रुप के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अगर हमें चाहिए तो अब हम देखेंगे. सिंपली देखिए मंथली इनकम बिलो 2000. देखिए तीन डेटा हमारे पास 25 जो रिस्पोंडेंट हैं उनमें 3 लोग ऐसे हैं जिनकी बेलो 2000 सैलरी है. उनका हेल्थ स्कोर कितना है? मीन, मीडियन, मोड. कर्टोसिस इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें डेटा हमें डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इनसफिशिएंट डेटा है. और ये तीनों चीजों का हमें बेलो 2000 यानी जो 0 ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स गिवन है. मंथली इनकम जिनकी 2000 से 4000 है उनका डिस्क्रिप्टिव. ऐसे 6 पर्सन्स आर देयर हु अर्न 2000 टू 4000. जिनकी 4000 टू 8000 सैलरी है वैसे 8 लोग हैं. और 8000 10,000 का 8% है. तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर objective, we can easily obtain the descriptive statistics of our data set. So this is the demonstration of descriptive statistics completely according to data or as per the separate file as per the need of objective. We can split the file and obtain the result as per our objective. Before performing any analysis, after getting, you can reset the split file, reset data, then okay. Now see split file off, क्योंकि जब आप एक बार जब परफॉर्म कर लें तो स्प्लिट फाइल ऑफ कर दें. स्प्लिट फाइल ऑफ मीन्स वी कैन द डेटा रिट्रीव डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. तो डेटा हमारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और जैसे पहले था, और स्प्लिट करने पर हमारा अकॉर्डिंग टू ग्रुप हो जाएगा. तो स्प्लिट फाइल ऑफ करना जरूरी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट which I have already told you how to split data according to gender. Now computing a new variable. How to compute a new variable by from the given data. अब न्यू वेरिएबल के लिए हमारे पास कमांड है गो टू ट्रांसफॉर्म एंड देन क्लिक ऑन कंप्यूट. क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म एंड क्लिक ऑन कंप्यूट. क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और कंप्यूट. और जिस तरह से हमें, सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू ऐड 2 वेरिएबल्स और इंटरेस्टेड टू डिवाइड 2 वेरिएबल्स, then we can use the numeric this command transform then compute. Now type the name of the variable which wish to create in the target variable. और यहाँ पर इस तरह से हमें विंडो मिलेगी और यहाँ पर टारगेट वेरिएबल में जो भी आप नेमिंग करना चाहें न्यू वेरिएबल का, यू कैन एड इट एंड यूज द कमांड ट्रांसफॉर्म एंड कंप्यूट. नाउ कम टू द मेन फाइल. सी total variables are here, total 10 variables. Now we are try to make a new variable by adding any 2 variables. So come to the command, go to transform, go to compute variable. Again go to transform, go to compute variable. New variable, suppose हमने इसकी नेमिंग करी nv, न्यू वेरिएबल. एंड अब हमें न्यू वेरिएबल कैसे बनाना है? नाउ न्यू वेरिएबल इज मेड बाय एडिंग 2 वेरिएबल. सपोज hypothetically we can say that ps plus as activity score. We are trying to add this variable ps and as and make new variable. ps और as यानी पर्सनालिटी स्कोर, एक्टिविटी स्कोर को मिला करके हमें नया वेरिएबल बनाना है. ये बन तो जाएगा, आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है तो आप 1 by 1 करेंगे तो इट टेक्स टाइम एंड टीडियस. सो यू कैन यूज इट दिस कमांड ट्रांसफॉर्म वेरिएबल एंड क्लिक ऑन ओके. नाउ सी compute new variable ps plus as, execute. Now come to the main file. See new variable is generated nv, न्यू वेरिएबल इज जनरेटेड. नया वेरिएबल जनरेट हो गया. अब देखिए यहां पर
वेरिएबल व्यू में देखिए एनवी, एनवी मीन्स न्यू वेरिएबल, एक न्यू वेरिएबल जनरेट हो गया। और न्यू वेरिएबल कैसे जनरेट हुआ है, आपने पर्सनालिटी स्कोर और एक्टिविटी स्कोर को ऐड करके नया वेरिएबल जनरेट किया। PS 15 plus 4 19, 21 plus 8 29, 22 plus 7, तो आप subtract divide, you can perform any mathematical operation by using this command. So this is the command to compute the new variable or generate the new variable by adding any mathematical operation, by performing any mathematical operation to get the result. So this is the basic idea of the how to define new variable through transform command. So next most important part is hypothesis testing. Hypothesis testing, it is an important inferential statistics part. And why it is important? It is important because without objective it is difficult to get your result. तो hypothesis क्या है? Hypothesis is any statement regarding the population. जो भी hypothesis, जो भी आप स्टेटमेंट पास करते हैं अपने रिसर्च के एस्पेक्ट में, अपनी पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में, सपोज an objective method of making decision or inferences from sample data. So there are two types of hypotheses are there. The one in null hypothesis and the other is alternate hypothesis. Alternate hypothesis आपकी जो होगी वो alternate hypothesis is a hypothesis, research hypothesis, और hypothesis जो आप का ऑब्जेक्टिव होगा बेसिकली वही आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, वही आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। यू मस्ट बी क्लियर दैट योर रिसर्च हाइपोथेसिस इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस होती है जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए अल्टरनेट इट इज डिफाइंड एज HA और H1. Alternative hypothesis, what we aim to gather evidence typically that there is a difference or effect or relationship. जैसे आप कह रहे हैं कि suppose you make any medicine and claim that this medicine is more much better than the previous medicine. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप क्लेम कर रहे हैं कि जो हमने नई दवा बनाई है, न्यू मेडिसिन इज मोर यूजफुल और मोर स्पीडी रिकवर सच थिंग्स देन द प्रीवियस मेडिसिन। तो आप ये क्लेम कर रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। तो दिस वन इज योर ऑल्टरनेटिव। और नल क्या होगा? नल मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेडिसिन। इन दोनों मेडिसिन के बीच में कोई फर्क नहीं है। Why we always accept or reject the null hypothesis means to avoid बायसनेस। बायसनेस मीन्स अगर आप पहले से ही ये कर लेंगे कि नहीं ये मेडिसिन अच्छी है तो आप रिजल्ट को आप बायस हो गए, दैट मीन्स, सो दैट्स व्हाई वी ऑलरेडी एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इसीलिए इसको कहते हैं हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। हम हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं, द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। रीजन क्या है इसको टेस्ट करने का, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड? रीजन यही है, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लें जुडिशरी का, तो जब भी दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है और वो जाते हैं किसी कोर्ट में, तो जो आपका मुकदमा जो सामने जब जाता है तो दोनों में ये रखा जाता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, दोनों लोग इनोसेंट हैं और दोनों इक्वल हैं मेरे लिए, क्योंकि अगर किसी का फेवर ले लें स्टार्टिंग में ही तो दैट मीन्स देयर इज अ बायसनेस। तो ये नल हाइपोथेसिस को ही हमेशा हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए रखते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो रिलेशनशिप और देयर इज नो इफेक्ट बिटवीन दीज टू। सो जनरली हम नल हाइपोथेसिस को इसी स्टेटमेंट में लिखते हैं और वी ऑलवेज ट्राई टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस नल हाइपोथेसिस। एंड रिमेंबर दैट योर रिसर्च हाइपोथेसिस इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। Now come to the main inferential statistics part, and this one is t-test. T-test generally क्या होता है? t-test फॉर सिंगल मीन। सबसे पहला एग्जांपल है पैरामेट्रिक टेस्ट का, t-test फॉर सिंगल मीन। t-test फॉर सिंगल मीन यानी अगर आपके पास मीन गिवन है किसी भी सिंगल पॉपुलेशन का और आपको वेरीफाई करना है कि गिवन डेटा इज सेटिस्फाइड द
जो कंपनी क्लेम कर रही है या जो भी हम क्लेम कर रहे हैं रिसर्चर, वो सही है या नहीं। सपोज एक एग्जांपल लिया हमने कि एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज सपोज टू बी 55। ये कह रहे हैं कि जो एवरेज हेल्थ स्कोर होता है किसी भी नॉर्मल पर्सन का वो 55 होता है। Health score of 12% from a community whose living condition are suspected causing poor health score are recorded in health data file. Do the data justify the suspicions regarding the health score of the community? Alpha is 5%। यानी कह रहे हैं कि एवरेज हेल्थ स्कोर इज 55, बट जो कम्युनिटी का जो हेल्थ स्कोर है हम देख रहे हैं कि वो पुअर लिविंग कंडीशंस हैं और क्लेम कर रहे हैं कि नहीं 55 से कम है। लेकिन और क्लेम क्या कर रहे हैं कि नहीं 55 तो नॉर्मल पर्सन का हेल्थ स्कोर होता है 55, लेकिन नहीं कह रहे हैं कि नहीं लिविंग कंडीशन पुअर है एंड average health score of a normal person is less than 55। now according to our data, हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग देखें जो हमारा हेल्थ स्कोर गिवन है, बिकॉज दिस ऑब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन दिस डेटा। सो हेल्थ स्कोर अगर हम देखें, our null hypothesis is average health score of a normal person is 55 and alternative है no average health score of a normal person is less than 55। less than 55 की बात कर रहा है, that means कह रहा है क्लेम कर रहा है कि 55 से कम है। अब इसको हमें टेस्ट करना है, तो सिंपली सबसे पहले any test which is parametric, t test for single mean, t test for independent sample, t test, pair t test, one way ANOVA, two way ANOVA, all are parametric test, and before performing parametric test we ensure that our given data is follow normality or not। तो हेल्थ स्कोर जो हमारा है वो नॉर्मल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हेल्थ स्कोर को ही हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टी टेस्ट अप्लाई करने से पहले कि हेल्थ स्कोर डेटा नॉर्मल है या नहीं, और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं अभी कि हेल्थ स्कोर हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है। अगर नॉर्मल फॉलो कर रहा है तभी हम फर्दर टी टेस्ट अप्लाई कर पाएंगे, और हम देख चुके हैं कि टी टेस्ट हमारा नॉर्मल डेटा हमारा हेल्थ स्कोर नॉर्मल फॉलो कर रहा है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो गो टू द analyze, go to compare means and go to one sample t test। now come to the SPSS file, go to analyze, go to compare means, go to analyze, go to compare means, go to one sample t test। again see, go to analyze, go to compare means and go to one sample टी टेस्ट। अब हमें क्या करना है, वन सैंपल टी टेस्ट में हमारा हेल्थ स्कोर है। हेल्थ स्कोर हमारा टेस्ट वेरिएबल है, बिकॉज इन आर ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज 55। तो हमने सिंपली इसको 55 और हेल्थ स्कोर के बेसिस पर ही हमें चेक करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया सिंपली। टेस्ट वैल्यू क्या है, व्हाट इज आवर टेस्ट वैल्यू 55, बिकॉज क्लेम क्या कर रहे हैं हम कि एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज 55। so this one is the testing variable। click on options, 95 confidence interval, that means 5% level of significance, जो कि ऑलरेडी गिवन है हमारे क्वेश्चन में। देखिए अल्फा इज 0.05, अल्फा इज 5%, that means confidence interval is 95%। तो click on continue, click on okay। now come to the output। अब देखिए हमारी पी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.021। कितनी पी वैल्यू आ रही है, 0.021, टेस्ट वैल्यू 55। तो दिस सिग टू टेल, बिकॉज टू टेल्ड आ रही है हमारी, लेकिन कितनी होनी चाहिए, हमारी जो वैल्यू है वो वन टेल्ड है। वन टेल्ड और टू टेल्ड है, 0.021 डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 0.01, बिकॉज इट इज टू टेल्ड। टू टेल क्या होता है, जनरली टू टेल्ड होता है हमारा। अगर मैं आई वांट टू शो यू हाउ टू गेट टू टेल्ड, इफ our alternative hypothesis is less than or greater than, means if it is given less than 55, less than means one tailed। अगर ये होता है कि एवरेज हेल्थ स्कोर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज ग्रेटर देन 55, then again it is one tailed। if the hypothesis is such like average health score of a normal person is not 55, इसका मतलब है कि हमें नहीं पता है 55 55 नहीं है, तो 55 नहीं में दो चीजें आ जाती हैं, आइदर इट इज ग्रेटर देन 55 और लेस देन 55। सो वी आर नॉट क्लियर, सो इन दैट केस
वी हैव टू टेल्ड हाइपोथेसिस। तो लेकिन यहाँ पर हमारी वन टेल्ड है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 2 से डिवाइड कर देंगे। Now we divide this p value, sig 2 tail divided by 2, so it will be 0.01. Then this 0.01 is less than 0.05, less than alpha. So our hypothesis accepted or rejected? If p value is less than 0.05, hypothesis will be accepted or rejected? एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट नॉर्मेलिटी कि अगर पी वैल्यू हमारी 0.05 से कम आती है तो हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इस केस में बताएं कि अगर हमारी वैल्यू आ रही है 0.01, सो इन दिस केस आवर हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? एनीवन? व्हाट विल बी आवर हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? Rejected. Rejected, because 0.01 is less than 0.05. So we can say that which statement we should reject? This one. Health, this null hypothesis reject average health score of a normal person is 55. It claims that this statement we are going to reject, and we can say that average health score of a normal person is less than 55. 55 से कम है, हम स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट, जनरली हम ये लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस वी कैन से दैट यू कैन पुट you can provide some more data, it must be changed, it should be changed. तो अकॉर्डिंग टू डेटा हो सकता है आप सही कह रहे हो सकता है कि आपको लग रहा हो प्राइम फेशिया में कि नहीं नहीं ये डिसीजन गलत आ रहा है, बट इट इज टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू डेटा। तो डेटा जो भी कहेगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ये इट शुड बी चेंज। जैसे होता है ना कि जनरली देखते हैं आप कोर्ट में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, आपको लगता है कि सामने वाला गिल्टी है लेकिन आप कहते हैं कि, और फिर भी वो बरी हो जाता है, वो इनोसेंट शो हो जाता है। रीजन कि ऑन द लैक ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस ले आइए, हो सकता है वो जेल चला जाए, हो सकता है वो गिल्टी हो जाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, तो डेटा के अकॉर्डिंग इट शुड बी चेंज। तो ये डेटा जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा आउटपुट आएगा। सो दिस इज द result of one sample t-test. Now second one is independent sample t-test. Independent sample t-test with reference to our health data. Independent sample t-test क्या होता है? It is the second application of one sample t-test. It is the application of t-test. Independent sample t-test is based on two population. When we have two different populations and we want to compare that on a particular characteristic, that is there any significant difference between these two population? जैसे हमने कहा with reference to our health data, suppose we wish to test there is any significant difference between mean health score of male and female. तो इस तरह से हम अगर हम देखें इसमें कि जो हमारा डेटा है, दिस वन, जो हमारा डेटा है हेल्थ स्कोर, दिस वन, दिस हेल्थ स्कोर, there is a significant difference between male and female. Male and female, we have two different populations. So in male and female we have two different populations, and we try to check that is there any significant difference between these two populations. So हम यहाँ पर चेक करेंगे हेल्थ स्कोर के अकॉर्डिंग कि मेल और फीमेल की जो हेल्थ स्कोर है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो दो पॉपुलेशन हमारे पास होनी चाहिए। सपोज आपने चेक करना है कि यू वांट टू चेक दैट suppose we have two students are there, and mathematics students and computer science student, maths students graduate and graduation students, and computer science graduate students, and both perform in the want to check that is there any significant difference between the marks of statistics इन मैथ्स स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो स्टैट्स के मार्क्स हमें चेक करने हैं कि क्या इनकी परफॉर्मेंस है मैथ्स स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो दो पॉपुलेशन हमारी हो गई, एक हो गई जिनका मेजर मैथ्स था, एक हो गई जिनका
मेजर कंप्यूटर साइंस था और स्टैट्स में किसी पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में, तो स्टैट्स के मार्क्स चेक करना है। सिमिलरली दो पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ भी हैं, मेल और फीमेल, और उनका हेल्थ स्कोर अगर हमें पता करना है तो हाइपोथेसिस क्या हो गई, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर, यानी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर, यानी मेल और फीमेल हेल्थ स्कोर में कोई फर्क नहीं है आपस में, क्योंकि नल हाइपोथेसिस है, तो इसी तरह का स्टेटमेंट बनेगा। और ऑल्टरनेटिव विल बी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर, और आपने क्लेम किया कि नहीं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल विद रिस्पेक्ट टू एवरेज हेल्थ स्कोर। तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव, बिकॉज यू आर क्लेमिंग दैट कि नहीं फर्क है, इज देयर एनी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो फर्स्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे आप, फर्स्ट यू शुड एंश्योर दैट योर डेटा फॉलो द नॉर्मेलिटी और नॉट। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं मेल और फीमेल कि हमारा जो हेल्थ स्कोर है वो नॉर्मेलिटी पहले से ही फॉलो कर रहा है, चेक कर चुके हैं। तो अब हमको सिंपली क्या करना है, एनालाइज, go to compare, go to independent sample t-test, then health score in the test variable, define group 1 and because 1 is male and 2 for female, and rest is okay. Now come to the SPSS file, go to analyze, go to compare mean, go to analyze, go to compare mean, go to independent sample t-test. What should we do? Go to analyze, go to compare mean, go to independent sample t-test. क्लिक ऑन हेल्थ स्कोर, बिकॉज आपको क्या पता करना है कि मेल और फीमेल का सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो हेल्थ स्कोर आपने टेस्ट वेरिएबल में पुट किया। ग्रुपिंग वेरिएबल्स में क्या रखेंगे, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन अकॉर्डिंग टू जेंडर, तो आपने ग्रुपिंग वेरिएबल हो गया जेंडर। देखिए हेयर जेंडर इज अ क्वेश्चन मार्क, तो डिफाइन करेंगे आप, डिफाइन ग्रुप्स, ग्रुप 1 इज मेल, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल, कंटिन्यू। व्हाई वी पुट 1 और 2, बिकॉज हमने यहाँ पर कोडिंग अपने जो क्वेश्चन आयर है उसमें 1 मेल को दिया है, 2 फीमेल को दिया है। अगेन कंटिन्यू, कैसे अगेन कंटिन्यू करेंगे, देखिए अगेन वी कैन चेक, एनालाइज, go to compare mean, go to independent sample t-test, and we are interested in health score, click on test variable. Next one is grouping variable according to gender, gender क्या था हमारा, 1 male 2 फीमेल, कंटिन्यू, ओके। देखिए अब देखिए हेल्थ स्कोर मेल कितने थे हमारे रिस्पॉन्स में, 14, फीमेल विल बी फीमेल्स आर 11, सो दिस इज आर ग्रुप स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आया है, हेल्थ स्कोर इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, व्हाई इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, अब यहाँ पर आपको लेवेनेट टेस्ट फॉर द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, बिकॉज टी टेस्ट में कंडीशन होती है कि इक्वल वेरिएंसेस, योर वेरिएंसेस मस्ट बी इक्वल एंड अननोन, योर वेरिएंसेस मस्ट बी इक्वल एंड अननोन, सो इक्वल और अननोन होना चाहिए। तो लेवेनेट टेस्ट में हम देख रहे हैं, लेवेनेट टेस्ट इज फॉर चेक द इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। इसको परफॉर्म करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो लेवेनेट टेस्ट है इक्वली परफॉर्म, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस इक्वल है या नहीं। तो थ्रू पी वैल्यू वी कैन से दैट 0.219, तो इक्वल अज्यूम वेरिएंस में 0.219, इसका मतलब ये है कि पी वैल्यू हमारी ग्रेटर है 0.05 से, और इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस कंडीशन ऑल्सो फुलफिल्ड, means variances are equal and unknown. Now we are check the p value, two-tailed significant two-tailed value, check 0.944, 0.944 का मतलब है कि p value is greater than 0.05, so in this case 0.944, so in this case our hypothesis will be accepted or rejected, 0.944, in this case what will be our hypothesis, accepted or rejected? Accepted. Accepted, because 0.944 is greater than 0.05, so we accept our hypothesis. And why it is two-tailed, because two-tailed,
Why it is two-tailed hypothesis? Because in our objective there is a significant difference between male and फीमेल. बस हम ये क्लेम कर रहे हैं कि मेल और फीमेल के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. कौन ज्यादा है कौन कम है, अगर इस तरह से बताते कि मेल इज ग्रेटर देन फीमेल और मेल इज लेस देन फीमेल, देन इट विल बी योर वन टेल्ड. बट यहाँ पर क्लियर नहीं है, बस हम ये क्लेम कर रहे हैं कि दोनों में फर्क है. तो हमारी जो हाइपोथेसिस होगी विल बी योर टू टेल्ड हाइपोथेसिस. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट. नाउ द third part will be paired t-test. Paired t-test is a third application of sample t-test, parametric t-test. इस केस में हमारे पास why it is different from independent sample t-test. In independent sample t-test we have two different populations and we want to check these two population on a particular characteristics. But in pair t-test, when we have a case of pre and post, before and after, अगर हमें इस तरह की कुछ चीजें चेक करनी हो तो हम पेयर टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे. और हमारी इस केस में पॉपुलेशन विल बी डिपेंडेंट, सैंपल विल बी डिपेंडेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट मींस वहां पर हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में वहां पर दोनों पॉपुलेशन के N1 N2 यानी नंबर ऑफ सैंपल्स वेरी कर सकते हैं और इक्वल भी रह सकते हैं और दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग होगी. लेकिन पेयर टी टेस्ट में हमारी जो पॉपुलेशन है प्री एंड पोस्ट, बिफोर एंड आफ्टर, इस तरह की कंडीशन होगी. सपोज करिए यहाँ पर अगर इस लेक्चर में हमारे इस लेक्चर में सपोज करिए 20 हैं लोग, 20 सैंपल हैं हमारे, 20 स्टूडेंट हैं. तो अगर हम उनका स्टैटिस्टिक्स में नॉलेज चेक करें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेक्चर, SPSS लेक्चर ऑन these 20 रिस्पोंडेंट्स, these 20 पर्सन्स, तो हम इसमें चेक करेंगे कि पहले हम आपका नॉलेज पे आपको स्कोरिंग कर देंगे आउट ऑफ 10. फिर उसके बाद आफ्टर परफॉर्मिंग दिस लेक्चर हम आपको सेम सैंपल्स पर आपको यानी आप ही लोगों को फिर से लेक्चर के बाद आपकी मार्किंग करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसको आउट ऑफ 10 नंबर देंगे. तो प्री और पोस्ट सेम पॉपुलेशन पे तो देखेंगे इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस लेक्चर. सपोज अगेन कोई दूसरा एग्जांपल लें कि इस केस में क्या होगा, हमारा जो N1 N2 है वो इक्वल होगा, यानी सेम पर ही सेम पॉपुलेशन पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा डेटा भी, हमारे जो सैंपल्स होंगे वो सेम होंगे. जैसे अगर सपोज करें कि जिस बीच में अभी कोविड आया था, तो सपोज कि सबसे पहले हमने उनका 20 पेशेंट किसी हॉस्पिटल में सपोज करिए एडमिट थे, तो हमने उनका हेल्थ स्कोर नोट डाउन किया और फिर वैक्सीन देने के बाद हमें चेक करना है कि दिस कोविड वैक्सीन इज, कंपनी ने क्लेम किया कि कोविड जो हमारी कोवैक्सीन बनी है इज वेरी यूजफुल इन दी कोविड पेशेंट्स, ऑन कोविड पेशेंट्स. तो हमने क्या किया, कोवैक्सीन देने के बाद उनका हेल्थ स्कोर नोट डाउन किया. तो किसी भी मेडिसिन की अगर हमें एफिशिएंसी चेक करनी है, किसी लेक्चर की एफिशिएंसी चेक करनी है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, सपोज हम लोग बहुत सारे रिसर्चर्स हैं किसी पार्टिकुलर में इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी चेक करनी है आपको, तो पहले नोट डाउन कर लिया 20 स्टूडेंट्स या 30 जो भी आपके क्लास में है, फिर लेक्चर देने के बाद उनकी स्कोरिंग. तो इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इफ यू वांट टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ लेक्चर ऑन दीज स्टूडेंट्स, तो हम पेयर टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे. तो सपोज करिए हमारे पास एग्जांपल है, प्लीज रेफर टू हेल्थ स्कोर डेटा wherein it seems that poor health scores poor living condition is one of the cause for poor health score. Better living conditions are provided to the people of this locality and after a month again their health score are recorded. Now we want to test is there any improvement in their health score after providing better living conditions. यानी जो हमारे पास डेटा है, हम क्लेम कर रहे हैं कि जो हेल्थ स्कोर है, जो पुअर लिविंग कंडीशन में रह रहे हैं उनका हेल्थ स्कोर अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम उन्हें बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका हेल्थ स्कोर इंप्रूव हो जा रहा है, ये क्लेम कर रहे हैं. तो अब हमारी जो हाइपोथेसिस हो गई
कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन हेल्थ स्कोर बिफोर एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग कंडीशन। तो नल हाइपोथेसिस हो गई कि चाहे आप उनको बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करें तो भी उनके पहले और बाद में कोई फर्क नहीं आ रहा है, बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद भी। और अल्टरनेटिव हो गई कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मींस कि नहीं फर्क आएगा, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग द बेटर लिविंग कंडीशन। तो इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हेल्थ स्कोर की हम नॉर्मेलिटी डेटा चेक करेंगे, नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। तो हेल्थ स्कोर हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हेल्थ स्कोर प्री एंड पोस्ट का हेल्थ स्कोर का हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि डेटा हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट एनालाइज कंपेयर मीन्स एंड पेयर सैंपल टी टेस्ट, move health score and under variable 1 health score 1 under variable 2 click on OK। now come to the SPSS file। SPSS फाइल पे आएंगे, देखिए go to analyze, go to this one is health score is pre, यानी 25 सैंपल्स हैं। जो ये कंडीशन कब है, जो हम उनको पुअर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड, यानी पहले हमने जो नोट डाउन करी 25 रिस्पोंडेंट्स की जो हेल्थ स्कोर थी वो ये नोट डाउन है। फिर हमने जब उनको बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करी तो उनका हेल्थ स्कोर ये हो गया। तो इनमें हमें देखना है कि क्या कोई फर्क आया कि नहीं आया। और रिस्पोंडेंट क्या थे, N1 इक्वल टू N2, यानी दोनों में सेम रिस्पोंडेंट थे, पॉपुलेशन सेम थी। अगर पॉपुलेशन डिफरेंट होती तब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते, लेकिन हमारी पॉपुलेशन सेम है, यानी जो हमारे 25 सैंपल्स हैं उन्हीं पर ही हम बेटर लिविंग कंडीशन, उन्हीं 25 को बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करके हम उन्हें उनका जो लिविंग कंडीशन हेल्थ स्कोर चेक कर रहे हैं। कैसे चेक करेंगे, गो टू एनालाइज, go to compare mean and again go to paired sample t-test, again check, go to analyze, go to compare means, go to paired sample t-test। अब इसमें सबसे पहले क्लिक करेंगे किस पर, हेल्थ वेरिएबल 1। वेरिएबल 1 कौन सा है हमारा, हेल्थ स्कोर इज वेरिएबल 1 एंड HS1 न्यू हेल्थ स्कोर। वेरिएबल 1 इज प्री, यानी पहले क्या कंडीशन थी, हेल्थ स्कोर, एंड वेरिएबल 2 इज पोस्ट, आफ्टर क्या कंडीशन है, ऑप्शन में गए 90। ओके, नाउ सी हेल्थ स्कोर न्यू एंड हेल्थ स्कोर न्यू एंड हेल्थ स्कोर ओल्ड, यानी प्री हेल्थ स्कोर और न्यू हेल्थ स्कोर में कोरिलेशन कितना आ रहा है, -0.014, पी वैल्यू 0.94। लेकिन जो मेन रिजल्ट है ये देखिए, मेन रिजल्ट इज significant two tailed 0.028। here you can say that 0.028 our hypothesis will be greater less than 0.05 लेस देन अल्फा। और पी वैल्यू अगर कम होती, इफ पी वैल्यू इज लो नल हैज टू गो, यानी पी वैल्यू अगर 0.028 है, पी वैल्यू अगर लेस देन 0.05 है तो हम कहेंगे कि रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो इस केस में हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है। विच हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, ये हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जा रही है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट means there is no significant difference between mean health score before and after। यानी जो आप स्टेटमेंट दे रहे थे कि अगर उनको अच्छी कंडीशन भी प्रोवाइड करें तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और एक्सेप्ट किसको किया, H1 को, कि मतलब फर्क है उनमें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्थ कंडीशन आफ्टर प्रोवाइडिंग बेटर लिविंग कंडीशन, यानी अगर आप उनको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो उनका हेल्थ स्कोर में भी फर्क आ रहा है। तो इस तरह हम पेयर टी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेयर टी टेस्ट एंड independent sample t test। what is the difference between pair t test and independent sample t test? In independent sample t test we must have two different population and we check on a same characteristics and numbers n1 n2, n1 belongs to number of sample in a single group, n2 belongs to number of sample in the second group। तो अगर n1 n2 इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों में 20 सैंपल भी हो सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन भी हो सकते हैं, किसी में 20 किसी में 25 भी हो सकते हैं। पेयर टी टेस्ट में क्या है, सेम सैंपल पर प्री और पोस्ट चेक करेंगे, यानी जो 20 पेशेंट्स हैं
उनकी पहले हेल्थ स्कोर नोट डाउन कर लिया, फिर उनको उन्हीं 20 पेशेंट्स को हमने कोई वैक्सीन दी और उसी वैक्सीन का चेक किया कि वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं, तो सेम सैंपल पर ही परफॉर्म होता है. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग samples are dependent. So this is the example of paired t test. So any query regarding t test? Anyone? Any query regarding t test? Any query regarding Sir, t can test? you show please how to check normality? Normality? Just Yeah. see. We already start the normality from the very beginning. Just I want to show you. See, go to analyze, go to descriptive, go to explore, and suppose I am interested in health score. Click on it, go to plots, unclick stem and leaf, and click on normality plot with test. Click on continue, click on OK. अब देखिए इसमें अब हमें क्या देखना है, ये चीज ये देखना है हमें नॉर्मेलिटी प्लॉट विथ नॉर्मेलिटी प्लॉट विथ टेस्ट. कहाँ गया इसमें normality plot with test. Just I want to show you again. Go to analyze, go to descriptive, go to explore, click on continue, and this one we get, see this one, this file, test of normality health score. यहाँ देखिए केएस टेस्ट एंड शपीरो विक टेस्ट, बोथ टेस्ट आर यूज्ड टू चेक द नॉर्मेलिटी ऑफ डेटा थ्रू पी वैल्यू. तो आप बेटर है कि टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी आप नॉर्मेलिटी चेक पी वैल्यू के थ्रू करें. तो यहाँ पर पी वैल्यू 0.200 है विच इज ग्रेटर देन 0.05. अगर 0.05 से ग्रेटर आ रही है तो हम कहेंगे कि हमारा डेटा नॉर्मल है एंड वी आर एबल टू परफॉर्म एनी पैरामेट्रिक टेस्ट. अगर नहीं है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे. तो इस दोनों इस केस में देखिए 0.200 आ रही है, वो ग्रेटर है किससे, 0.05 से. सो 0.05 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मल है. गेट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके. एनीवन एल्स ऑन टी टेस्ट? एनी क्वेरी रिगार्डिंग टी टेस्ट? Any query regarding t-test? Anyone? Okay. Now we are going to the next test, that is correlation. Correlation analysis. Correlation measures how variables are related, how two variables are related with each other. Basically, it talks about the strength and direction between two variables. Quantify the strength and direction between two variables. दो variables के बीच में क्या strength and direction. Strength क्या है? Strength means correlation lie between -1 to +1. जो correlation होता है वो lie करता है -1 से +1 के बीच में. तो -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू आ रही, सपोज close to +1, suppose 0.9, 0.8, this is a strong positive relationship between two variables. And if it is close to -1, -0.7, -0.8, then it will be strong negative correlation. तो दो तरह के कोरिलेशन हो गए, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव. या वी 0.5 आ गया, दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. 0.6, good relation, there is a good correlation between two variables. 0.9, 0.8 means there is a strong relationship between two variables. Either it is positive or negative. You should be remember that the correlation lie between -1 to +1. -1 से +1 के बीच में लाई करती है. अब कोरिलेशन आपका दो तरह का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड निगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? when two variables moves in the same direction. अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, तो दिस केस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसा है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, क्या इफेक्ट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? इज देयर एनी रिलेशनशिप? इनकम एंड Yes. which type of relationship? Means both are increasing. If income increases, expenditure also increases. यानी अगर इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी आपके इंक्रीज होते हैं, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इसका दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन मींस इफ वन इंक्रीजेस other decreases, if one decreases other increases, means both variables moves in the opposite direction. इसका एग्जांपल है एज एंड हेल्थ। जैसे जैसे एज बढ़ती है हेल्थ आपकी डाउन होती है, तो दैट मींस एज एंड हेल्थ, पावर एंड सप्लाई, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई। तो इस तरह से जो ये निगेटिव कोरिलेशन है, तो निगेटिव कोरिलेशन इफ इट इज क्लोज टू -1 देयर इज अ स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन, एंड इफ इट इज क्लोज टू +1 देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर 0.8 0.9 आ रहा है पॉजिटिव में, तो इसीलिए वर्ड यूज करते हैं कि स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। स्ट्रेंथ मीन्स पॉजिटिव, स्ट्रेंथ मीन्स वैल्यू 0.8 0.7, डायरेक्शन मीन्स निगेटिव एंड निगेटिव और पॉजिटिव, यानी अगर पॉजिटिव है तो दोनों सेम वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड इफ इट इज अपोजिट डायरेक्शन मीन्स निगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, तो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो दीज आर द कंडीशंस, एंड Spearman and Kendall correlation coefficient, both are used for the non-parametric measures. Both are used for the when the data belongs to the Spearman, Likert scale. Likert scale क्या होती है? Likert scale जैसे जिसमें आप respondent आप 5-point scale जिसको कहते हैं, जैसे 1 means strongly disagree, 2 means disagree, 3 can't say, 4 agree, 5 strongly agree. So this such type of scales is known as Likert scale. तो Likert scale जब भी होगी तो रैंकिंग पर बेस्ड है, स्पेयरमैन आपका रैंकिंग पर बेस्ड है, तो इस तरह के जब हम यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे स्पेयरमैन एंड कैंडॉल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हाउ टू परफॉर्म सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट? Refer to your health data file and perform the following SPSS. Interpret your result. Graph the data in scatter plot. Scatter plot क्या होता है? Scatter plot generally used to determine the relationship between two variables. Suppose आपको पता करना है, if you want to draw the scatter plot to determine if there is a possible relationship between age and health score. Age और health score में क्या रिलेशनशिप है, अगर आपको पता करना है, स्कैटर प्लॉट आपको स्कैटर डायग्राम आपको प्लॉट करना है एज और हेल्थ स्कोर के बीच में, तो किस तरह परफॉर्म करेंगे? आपके वेरिएबल क्या है? एज एंड हेल्थ स्कोर, यानी आपको पता करना है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, विच टाइप ऑफ कोरिलेशन दे हैव, एज एंड हेल्थ स्कोर। कंप्यूट सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, whether relationship between age and health score is significant। ये तीन चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले हाउ टू परफॉर्म स्कैटर प्लॉट, open your health data file, go to graph, go to legacy dialogs and go to scatter dot। इस तरह की फाइल आएगी, go to graph, go to legacy dialog and click on scatter dot plot and simple select the simple scatter, define करेंगे health score and y is the age, health score and age। तो health score होगा हमारा और age होगा, इसको हम डिफाइन करेंगे सिंपली। Go to the SPSS file, go to graph, simply go to graph, go to legacy dialogs, go to graph, go to legacy dialog। Why we are doing this? To get scatter diagram। Scatter diagram क्या होता है? Relationship between two variables। It shows the relationship between two variables, whatever be your two variables। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल क्या हैं? एज एंड हेल्थ स्कोर, तो दो वेरिएबल्स हैं। क्लिक ऑन स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में हमने क्लिक किया, देयर आर सम अदर वेरिएबल्स आर देयर, जस्ट क्लिक ऑन सिंपल स्कैटर डायग्राम, क्लिक डिफाइन। वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा?
हेल्थ स्कोर, क्योंकि हेल्थ स्कोर हमें पता करना है किसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस पर हमने पता किया, क्लिक ऑन ओके। सी दिस वन, ऑल द वेरिएबल्स मूव्स इन जस्ट लाइक वन। अगर डेटा इस तरह से अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो देखें ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हो रही है मैक्सिमम। इस तरह से लाइन ड्रॉ जब होगी तो इसका मतलब है निगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, यानी एज के साथ साथ हेल्थ स्कोर भी आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर एज बढ़ रही है, जैसे देखिए एज आपकी, एज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है हेल्थ स्कोर आपका डाउन, कम एज थी हेल्थ स्कोर ज्यादा था, जैसे जैसे एज बढ़ी हेल्थ स्कोर आपका डाउन हो गया। तो लेकिन सपोज करिए ये आपने प्लॉट किया और इससे आपको क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जनरली कहते हैं ग्राफ से हमें, ग्राफ से तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन जनरली क्या कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू परफॉर्म थ्रू पी वैल्यू। तो बेटर है कि आप कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू आप आर की वैल्यू परफॉर्म कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू एनालाइज, दिस इज योर स्कैटर डायग्राम, ये आपका स्कैटर डायग्राम था, ये आपका सॉरी, गो टू एनालाइज, ग्राफ, लेगेसी डायलॉग्स, स्कैटर डायग्राम, डिफाइन, ओके। ये आपका स्कैटर डायग्राम था, दिस इज योर स्कैटर डायग्राम। नाउ वी आर सेकेंड स्टेप इज टू कंप्यूट। अब हमने क्या किया, सबसे पहला हमने स्कैटर डायग्राम कंप्यूट कर लिया, अब हमें क्या कंप्यूट करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक, go to analyze, go to correlate, go to analyze, go to correlate, go to bivariate. Why bivariate? Because we have two variables, दो variables हैं हमारे, कौन कौन से दो variables हैं, एक है age और एक है health score. So click on bivariate. What are our variables? One is health score, one is the age. इन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है, पियर्सन आपने क्लिक किया, डेटा इज क्वांटिटेटिव, तो आपका पियर्सन, आपका पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट है, क्लिक ऑन ओके। अब देखिए हमारा हेल्थ स्कोर एंड एज वैल्यू कितनी आ रही है, -0.6 यानी -0.7 के अराउंड। व्हाट डज इट मीन्स, इसका क्या मतलब है -0.7, इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग Relation. ऑफ दिस रिजल्ट, देयर इज अ Negative correlation. negative correlation means as age increases health decreases, यानी एक इंक्रीज Decreases. कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। तो Decrease कर इसके, रहा है. जी, इसके थ्रू हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं कि कैसे हमारे जो कोरिलेशन है किसी भी वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन आपस में फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक आइडिया है आपका कि हाउ टू ऑब्टेन द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एंड दिस वेरिएबल इज द negative scatter diagram. Scatter diagram shows you about the relationship, negative scatter diagram show the relationship between two variables, और ये भी हमारा नेगेटिव शो कर रहा है, क्योंकि अगर आप का प्लॉट इस तरह बनेगा, अगर कुछ लाइन अगर आप ड्रॉ करें, इस तरह की लाइन बन रही है, मींस 20 और इस तरह से इंक्रीज करेगा, दैट मींस पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से आ रही है, तो आप ये निगेटिव कोरिलेशन है। और सपोज सेटिस्फाई अगर नहीं हो रहा है रिव्यूअर, देन यू कैन बेटर टू परफॉर्म टू ऑब्टेन दिस वैल्यू, ये वैल्यू ज्यादा अच्छी है। लेकिन विजुअल रिप्रेजेंटेशन इफेक्टिव होता है ज्यादा। करंट सिनारियो तो ऐसा है कि जितने ग्राफ होते हैं उतना पेपर पब्लिश होता है, तो बेटर है कि आप डायग्राम भी परफॉर्म करें और वैल्यूज को भी ऑब्टेन करें। द नेक्स्ट स्टेप इज आई ऑलरेडी, पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या है, व्हाट इज पार्शियल कोरिलेशन, partial correlation coefficient describe the relationship between two variables while adjusting the effect of one or more additional variable. इसका मतलब क्या है, इसकी डिफिनेशन कि if you want to check the effect of two variables by eliminating the effect of third variable, means price production and प्राइस प्रोडक्शन एंड सेल्स। सपोज करिए तीन वेरिएबल हैं और तीनों एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड हैं, और आपको हाईली कोरिलेशन की वजह से आपको चेक करना है सपोज प्राइस एंड प्रोडक्शन के बीच में कैसा कोरिलेशन है, और आप देख रहे हैं कि सेल भी उस पर इन दो वेरिएबल्स के बीच में इफेक्ट
क्रिएट कर रहा है, तो आपने यूज करना है पार्शियल कोरिलेशन. तो बाई words are generally used by eliminating the effect of third variable, by controlling the effect of third variable. We in such type of case we use partial correlation. In our example, suppose we consider you want to find the correlation between health score and personality score controlling the effect of age. आपको पता करना है हेल्थ स्कोर और पर्सनालिटी स्कोर के बीच में कैसा कोरिलेशन है, और आप देख रहे हैं कि एज इज द थर्ड वेरिएबल विच इफेक्ट ऑन दीज टू वेरिएबल्स. तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में वो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो आपको पार्शियल कोरिलेशन यहाँ ऑब्टेन करना है. सो हेल्थ स्कोर एंड पर्सनालिटी स्कोर बाय कंट्रोलिंग और बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ थर्ड वन. इन सच केस वी यूज partial correlation. So analyze, go to correlate, go to partial, move health score and personality score in the variable and controlling the effect, third one, age. So this will be your result. Now come to the SPSS file. Go to correlate, go to partial, click on analyze, go to correlate, go to partial, click on it. What are the two variables you want to correlate? Health score, personality score. And what are the variable controlling effect? Age. Age is the controlling effect. Click on it. Click किया आपने. Now after click the age of a person as a controlling variable, click on options. There is no requirements are there. Continue and click on OK. अब आप देख रहे हैं कि by controlling the effect of age, health score and personality score, इनके बीच में जो हेल्थ स्कोर और पर्सनालिटी स्कोर के बीच में जो कोरिलेशन आ रहा है वो 0.007 है. दैट इज वेरी वीक. वीक मीन्स जीरो कोरिलेशन. इट इज अराउंड जीरो कोरिलेशन. मीन्स हेल्थ स्कोर और पर्सनालिटी स्कोर को अगर आप एज एज ए कंट्रोलिंग वेरिएबल कंसीडर करते हैं तो इनमें आपस में जीरो कोरिलेशन है. इनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं आ रहा. जीरो मीन्स जीरो कोरिलेशन. तो एज और पर्सनालिटी, हेल्थ एंड पर्सनालिटी स्कोर, by eliminating the effect of age we get zero correlation between health and personality score. So this is the output of the, basically this is the output of the partial correlation. Now before going to compare me using one way ANOVA, we just want to show you how to check the reliability, how to check the reliability of the given questionnaire. जैसे आपसे कहा जाता है जनरली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हमें डेटा की रिलायबिलिटी चेक करनी है. अगर डेटा रिलायबल है या नहीं, हमारा जो क्वेश्चनायर है, सर प्लीज़ हमारा क्वेश्चनायर रिलायबल है या नहीं, वैलिड है, रिलायबल है या नहीं, चेक करना है. तो सिंपली हम क्रॉनबैक अल्फा टेस्ट के थ्रू हम अपने क्वेश्चनायर को, एक क्वेश्चनायर की रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं. क्वेश्चनायर की रिलायबिलिटी किस तरह चेक करेंगे? सपोज वी हैव अ डेटा सेट. आई वांट टू शो यू द डेटा सेट. एक हाइपोथेटिकल हमारा डेटा सेट है. आप इस तरह से बनाते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. दीज आर दी क्वेश्चंस आर गिवन इन योर 41 respondents are there and this is the response of this questionnaire. आपके पास सपोज करिए क्वेश्चनायर है और उनका रिस्पॉन्स नोट डाउन किया है हमने, और आपने कहा, आपके सुपरवाइजर ने कि प्लीज, और रिव्यूअर ने कहा प्लीज योर रिस्पॉन्स, योर रिस्पॉन्सेज आर रिलायबल और नॉट, चेक द रिलायबिलिटी ऑफ योर डेटा सेट. तो अगर आपको रिलायबिलिटी चेक करनी है तो सिंपली रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे? इसको हमने कॉल कर लिया था ऑलरेडी. SPSS में ऑलरेडी हमने कॉल कर लिया था रिलायबिलिटी डेटा. सी, दिस इज द क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. देयर इज अ total, how many questions are there? Total 28 questions. Or we want to check that
द डेटा इज रिलायबल और नॉट। तो अगर हमें इस तरह से चेक करना है कि डेटा हमारा रिलायबल है या नहीं, गो टू एनालाइज, go to scale, go to reliability. Again we check, go to analyze, go to scale, and again go to reliability and click all the questions, control A, select in items, and we want to check the reliability of this questionnaire. So we use the Cronbach alpha test. Cronbach alpha test is used to check the reliability of data set. अब देखिए हमारे पास टोटल 28 क्वेश्चंस थे, एन नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे? नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे टोटल, देखिए टोटल क्वेश्चन हमारे कितने थे? 28 क्वेश्चंस थे। इफ यू चेक इन दी एक्सेल फाइल, टोटल क्वेश्चंस आर 28 क्वेश्चंस थे, और इन्हीं 28 क्वेश्चंस की जो रिलायबिलिटी थी हमें चेक करनी थी। तो हमने देखा कि जो आउटपुट आया है हमारा वो 0.913 Cronbach alpha test. This is the reliability statistics. Means Cronbach alpha test is 0.913. We can say that our data is reliable for the further analysis. हमारा डेटा रिलायबल है, क्यों? 1 के जी, when it is close to 1, 0 to 1, जनरली हमें क्या है कि 0.5 से 0.6, 0.6, 0.7, 0.6 से अबव 0.6, 0.7, 0.8, व्हेन इट इज क्लोज टू 1, तो 0.6 और 0.7 इस तरह से मिलता है, तब भी हम कह सकते हैं हमारा डेटा रिलायबल है फॉर द फर्दर एनालिसिस। और जब हम रियल डेटा पे करते हैं तो हमें डिफिकल्टी हो जाती है ऑब्टेन करने में, बट मोस्टली वी अचीव द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। तो यहाँ केस में हमारा 0.913 आ रहा है, इसका मतलब है कि which is close to 1, and we can say that our data which is given in our questionnaire is reliable and used for the further analysis. So this is the reliability, how to check the reliability of the data set. Any query regarding reliability of the data? Any query? No, sir. Okay, thank you. uh, Now next step is compare means using one-way ANOVA. One-way ANOVA. What is one-way ANOVA? One-way ANOVA means analysis of variance. Analysis of variance. One-way ANOVA. One-way ANOVA means when we have a single factor is responsible for the variation. सिंगल फैक्टर अगर हमारा रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन के लिए, तो हम वन वे अनोवा यूज करेंगे. If we have two population, then we use independent sample t-test. If we have more than two population, we use the one way ANOVA. One way ANOVA because अब देखिए suppose in reference health data file, suppose the researcher wish to test there is any significant difference in the mean health score of people belong to different income groups. यानी according to health data file, suppose a researcher wish to test there is any significant difference between mean health score with respect to different income groups. हमारे पास हमें चेक करना है कि जो हमारे पास डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट जो अलग अलग लोगों की सैलरी है उनके हेल्थ स्कोर में क्या फर्क है. तो जो डिफरेंट सैलरीज हैं उनके ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? टोटल ग्रुप्स हैं हमारे according to monthly income, how many groups are there? Total 4 groups, 0, 1, 2, 3. So that's why it is called mu0, mu1, mu2, mu3. 4 ग्रुप हैं हमारे, और हमें देखना है कि ये चारों ग्रुप में हमारा जो हेल्थ स्कोर है अकॉर्डिंग टू सैलरी डिफरेंट ग्रुप्स उनमें आपस में फर्क है या नहीं. सपोज करिए यहाँ 2 ग्रुप होते 1 और 2, तो हम कौन सी चीज यूज करते? विच टेस्ट वी आर एबल टू परफॉर्म? वी कैन इजिली परफॉर्म विच टेस्ट? अगर हमारे पास 2 ग्रुप होते तो हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते थे? सिंपली अगर हमारे पास 2 ग्रुप होते
और हेल्थ स्कोर हमें पता करना होता? टी टेस्ट, टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ओके, ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हम यहाँ इजिली परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ दो से ज्यादा ग्रुप हैं। मंथली इनकम में हमारे पास 4 ग्रुप हैं, मोर देन 2। तो हम यहाँ पर इस केस में सिंगल फैक्टर हमारे पास हेल्थ स्कोर है, तो हम यहाँ पर हमें चेक करना है, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the mean of several income groups, h naught such that mu0 is equal to mu1 equal to mu2 equal to mu3, means mu0 means mean of first group equal to mu1 mean of second group, mu2 mean of third group, mu3 mean of fourth group. H naught means all groups are equal, there is no significant difference between the health score with respect to the income. और H1 क्या है? एटलीस्ट वन इज डिफरेंट, एटलीस्ट वन इज डिफरेंट। तो हमारी जो नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनी वो हमारी बनी कि वन ग्रुप इज एटलीस्ट डिफरेंट। तो जब हमारे पास हमें चेक करना होता है दो से ज्यादा, तो हम वन वे एनोवा यूज करते हैं। वन वे एनोवा ऑन अ सिंगल फैक्टर, यानी सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन in the field. In agricultural area, one way design is one way ANOVA is CRD, complete randomized design, जो एग्रीकल्चरल एरिया में हमारा एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, एग्रोनॉमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, वो वन वे अनोवा यानी CRD कंप्लीट रैंडमाइज डिजाइन जो होती है वो वन वे अनोवा होती है। और टू वे कौन सी होती है? RBD, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। इन वन वे सिंगल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंट, इन टू वे two factors are responsible for the variation in experiment. So today any query, today we stop here because it takes time in analysis, and we start from the today's lecture. Tomorrow we start from the one way ANOVA again and perform the analysis one by one and discuss some useful informations. So any query regarding today's talk? Anyone? Any query? Excuse me, sir. Yes. Sir, will you provide a recording in the group? Yes. Our organizer provide you recordings of all the lectures. Okay, yesterday I was not able to attend, so Okay. that's why. Sure. Thank you. Sir, I also did not attend yesterday's session. So Okay. can you please very briefly explain how to enter the data in SPSS? Okay. See, suppose if you have a file like this, okay? So it will once you click on SPSS file, there are two types of sections are there: variable view and data view. Variable view given है और data view. So click on variable view. You have whatever be your variables you have entered here. Suppose in variable you have age. You when write it age, it consider by default न्यूमरिक लेता है क्योंकि एज आपकी न्यूमरिक है। 8 विथ में बाय डिफॉल्ट 8 आएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम, बट ट्राई टू रिमेंबर दैट एज डज नॉट कंसीडर द स्पेसिंग। अगर आप लिखेंगे एज ऑफ स्पेस दे करके तो आप एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, मींस एज दिस नेमिंग ऑफ द वेरिएबल डज नॉट कंटेन द स्पेसिंग, तो स्पेस नहीं लेता है। बट इन लेबल इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चन, यहां आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, एज ऑफ द रेस्पोंडेंट। ओके, इस तरह से आपने लिख दिया। एंड देयर इज नो कोडिंग, वैल्यूज इज फॉर कोडिंग, वैल्यू कोडिंग के लिए। तो एज में हमारी कोई कोडिंग नहीं है तो हमने सिंपली इसको ऐसे ही इसको छोड़ दिया। मिसिंग, नो वैल्यूज आर मिसिंग। कॉलम्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द कॉलम्स, it doesn't means it changes, you can increase or decrease 8 9 10, by default 8 लेता है, आप increase या decrease कर सकते हैं। ये भी by default 8 लेता है, increase या decrease कर सकते हैं। डेसिमल, एज
आपकी 27 है, 28 है, 29 है आपके रिस्पोंडेंट की, 0 अगर डेसिमल वैल्यूज नहीं है तो आप 0 कर दीजिए। अगर है कुछ, सपोज आपका कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें 27.02 आ रहा है, 2 है वेरिएबल्स तो 0.2 कर दिए, 3 है तो 3 कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ योर डेटा यू कैन चेंज द डेसिमल वैल्यूज। नेक्स्ट So, वन इज decimal value is the value of the age. मतलब if our age is 20, we have to feed 20. So we will write that 20. यस, यू कैन राइट इट 20। सपोज करिए Okay. जैसे तो आपकी सर कोई वैल्यू है with and column क्या है? ये with and column. with is the number of characters in the name. बाय डिफॉल्ट इट कंटेन्स 8, अभी 3 है तो बाय डिफॉल्ट 8 लेता है ये। तो ये अपने आप इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ भी चीजें आप इंक्रीज करेंगे तो वो अपने हिसाब से वो बाय डिफॉल्ट, ये इसमें कोई तो फर्क we नहीं have है। no, ये हमें तो नहीं feed करना with and नहीं, column. आपको नहीं फीड करना पड़ेगा, ये It is इंक्रीज by या डिक्रीज default. बाय डिफॉल्ट लेता है ये Okay. डेसिमल वैल्यूज। बट डेसिमल वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जब कॉल करते हैं तो कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर चेंजेस, जैसे आपने सपोज किया आपका डेटा अगर है एज में, सपोज करिए एज हमारे पास मंथ वाइज है, तो हम डेटा व्यू में गए, आपने फीड किया 22.12 और वेरिएबल व्यू में गए, हमारा 0 दिखा रहा है अभी यहाँ पे, तो 2 कर दिया आपने 22.12। और अगर आपका 0 डेसिमल है, यहाँ पर आपकी वैल्यूज नहीं है हमारी, तो सिंपली हम सॉरी 22 यहाँ पे हमारा 0 है। देखिए अब यहाँ पर अगर 22 है, हम इसको 0 कर दें, तो अगर 0 मतलब यहाँ पे इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू योर डेटा आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 22.22 है तो 2 डेसिमल कर दीजिए, 20.32 है तो 3 डेसिमल कर दीजिए, बट बाय डिफॉल्ट ये 2 लेता है, 8 एंड 2 लेता है, ये 8 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर। वैल्यूज मिसिंग पे सपोज करिए एक देख लीजिए आप इसको, जेंडर, जेंडर आपने लिखा, जेंडर आपका न्यूमरिक क्यों है, वाई न्यूमरिक, बिकॉज जेंडर को आपने 1 और 2 कोड किया है। अगर आप 1 और 2 कोड नहीं करते हैं तो ये स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग में फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट न्यूमरिक लेता है। यहाँ पर लिखेंगे आप एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चन, जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर अब आपको कोड करना पड़ेगा, यानी आपने अपने क्वेश्चनर में 1 दिया है मेल को, M हमने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, 1 फॉर मेल, एड 2 फॉर फीमेल, एड ओके। अब आप देखेंगे डेटा व्यू में जाएंगे, देखिए जेंडर भी आपका वेरिएबल आ गया। अब आप लिखेंगे 1 2 फीमेल 1 1 हो गया, मेल। तो इस तरह से आप मेल और फीमेल आपका जो भी डेटा होगा वो कोडिंग, आप वैल्यू लेवल्स पे क्लिक करेंगे 2 1, यानी फीमेल आप भूल गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीमेल, व्हाट इज द कोड ऑफ फीमेल, तो फीमेल इज 2, मेल इज फॉर 1। तो इस तरह से हम कोडिंग हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एनी क्वेरी, कोई चीज और नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हैं। सर एक चैट हाँ। बॉक्स में क्वेश्चन है सर, क्या क्वेश्चन है चैट बॉक्स में है, देखिए। Sir, when we calculate normality, do we check normality of all items together? No, no, no. You just check the normality of those variables in which you are perform the particular, which is based on your objective. Suppose your objective is based on your health score. Just check the normality of health score. अगर आपको चेक करना है, इफ यू want to check the you are interested in a particular variable, just check the normality of that variable. बस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ योर ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव में जिस वेरिएबल की जरूरत है, यू कैन चेक इट। यस, एनी क्वेरी, एनीवन? This is not a query, sir. Just an request that I Yes. have not received the message for joining the class for 2 days continuously. Yesterday also I didn't receive. Today also I didn't receive. So host The kindly organizer please sir, check. organizer sir is there. मैम Okay, मैम sir, मैम मैम एक्चुअली यू आर नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। I am there, sir, but I am not receiving the message.
I'm getting it Ma'am, from one of my friend joining. ma'am, actually there is a every link is going in the WhatsApp group, no? And which WhatsApp Yes. group you join, ma'am? That is Bharat. This No, thing no, only, sir. no. Okay. हाँ I'm sending the link of the this group, है ना? वो हाँ आप गलत जगह पर पहुंच गए आप. Actually, whenever अच्छा you आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था ना, उसके बाद भी एक ग्रुप हम लोगों ने दिया था. ओके. हाँ और जो हमने कंफर्मेशन वी हैव सेंट यू द कंफर्मेशन हाँ उसी ग्रुप में. हाँ देयर विल बी ग्रुप. वो भारत कंफर्मेशन दिया था ना आपने भारत डिजिटल. So just you write me hello in mind this number ना. अभी मैं just आपको आपकी क्वेरीज खत्म करता हूँ सर मैम. सेम ग्रुप में सर. हाँ, ये नंबर पे 800 वाले नंबर पे we will. हाँ ओके सर. Don't थैंक यू worry, फॉर दैट सर. don't worry about it. I will consider on the last lecture. If you have any type of query, someone who missed the yesterday lecture, I will cover it on the last lecture. Okay. ओके सर. थैंक यू वेरी मच. Discuss some important issues, whatever be your issues. If you are interested in sample size determination, I have some topics are there. If you agree, then I will discuss sample size determination. Sir, I want to ask if can we download this SPSS program from internet Yes, on our yes, laptop? you can download this SPSS in software this software in your laptop by using the student trial version, because it is a licensed software. It is costly, so use it as a student trial version SPSS for 30 days. Okay. I will provide you link. Okay, just wait. I'll share. Just wait. I'll share and you can copy it. हरी प्रसीदा मैम kindly share kindly say hello in WhatsApp मतलब WhatsApp. I will send you link. Sir, I have sent hi. Okay ma'am. This is the link where you can easily download the student trial version by completing the entities. And when he asks about are you a student, just click yes. And when you receive this code and download it or student trial version. Okay. Any query? Anyone? Any query? I think sir there is a no query. Okay, thank you. We will see you the next week on Sunday na. 6. The Okay. same time 4 p.m. na. Saturday na 4 Okay. p.m. sir. Yes, 4 p.m. Okay. We will see you the Saturday on 4 p.m. Okay. Yes. Okay. और Thank you everyone. Hariprasad ma'am, I have sent to you link. मतलब what Okay. kindly join it है ना. Sure, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much everyone. है ना, I have sent actually ना फरसाना मैम का एक क्वेश्चंस था. Actually we have not provide the notes and PPT. We will provide you ma'am video. You can watch है ना. We have already post yesterday's video है ना in group. You can watch that and we will post the today's lecture है ना. We will post today's lecture also. Okay, thank you very much everyone. Hello, sir. जी Hello. जी Hello. जी. Yes. Sir, actually, I am not able to attend the class on 4 p.m. every Saturday. On Sunday, it will be okay. It will be only the next Saturday. After that, we will arrange the 6 p.m. है ना. 6 बजे होगी कल का. और एक्चुअली ये जो सर है ना हमारे, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी 6 p.m. पे,
तो आज की हुई है और सैटरडे की और होगी, और आफ्टर दैट नहीं होगी उसकी, है ना। उसके बाद फिर 6 PM है सारी क्लासेस, Okay, okay, sure, है ना। नेक्स्ट सैटरडे बस, और उसके बाद नहीं है ना। sure, sure. ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू। Okay, sir. Thank you.